اس نے مجھے صحیح سلامت اپنے روبرو دیکھا تو ضبط کے سارے بندھن بے اختیار ٹوٹ گئے۔ میں اسے اپنی باہوں میں سمیٹے وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر تک سسکنے کے بعد اس کے دل کا غبار ہلکا ہوا تو خود کس مسا کر مجھ سے الگ ہو گئی۔ اب آپ مجھ سے وعدہ کرے کہ آئندہ اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے کوٹ کا کالر پکڑ کر اپنائیت بھرے لہجے میں مطالبہ کیا۔ اس وقت اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی مسرت آمیز شوخی چمک رہی تھی اور آواز بھرائی ہوئی سی تھی۔ نہیں جاؤں گا، میں نے اس کی تھوڑی اوپر اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ایسی جگہ جا چکا ہے جہاں جانے سے ہر مسلمان پناہ مانگتا ہے۔ غزالہ نے کسی بچے کی طرح جس بے پایا خوشی کا اظہار کیا اس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس نے راجن کو نہیں دیکھا تھا، نہ وہ مکروہ صورت بدمعاش ٹیلی ویژن پر آنا پسند کرتا تھا۔ اس کی کھلی مکاریوں کے قصے سن سن کر غزالہ نے اپنے ذہن میں اس کی جو تصویر بنا لی تھی وہ ناقابل شکست تھی۔ ایسے دشمن کے مارے جانے کی خبر اس کے لیے بڑی خوشخبری تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک مدت سے جاری خوناک مارکا رائی آخرکار اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ اس مکار افریز سے دوبارہ ٹکراؤ ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ غزالہ نے جس پرجوش انداز میں میرا استقبال کیا اس سے میری ساری کلفت دور ہو گئی۔ موتی محل میں پیش آنے والے واقعات کے بعد طبیعت پر طاری ہونے والا بوچھل پن کافور ہوتے ہی مجھے ڈان کی فکر سوار ہو گئی۔ وہ واقعہ بہت بڑا تھا۔ میں آخری لمحات پر مشکل سے چاؤفان سے اپنا پیچھا چھڑا کر راجن کی طرف کیا تھا۔ ان لوگوں میں سے کسی کو میرے ارادے کی بھنک نہیں مل سکی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ میں اپنی اس کامیابی کا جائز کریڈٹ کیسے لے سکوں گا۔ غزالہ کو تفصیلی واقعات جاننے کا تجسس تھا۔ وہ تحمل اور مستقل مزاجی سے میرا ساتھ دیتی چلی آ رہی تھی۔ میں اسے نظر انداز کر کے اس کی حق تلفی نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے اسے موتی محل میں رونما ہونے والے واقعات بتائے تو آخر میں اس نے میرے اس اقدام کو دل کھول کر سراہا کہ میں نے راجن کی تجوری سے نکلوائے ہوئے 1 کروڑ بھات اپنے ہاتھوں سے وہی نظر آتش کر دیے تھے۔ وہ رقم ہمارے پاس آتی تو اپنے ساتھ نہ جانے کتنے نہوستے اور مصائب لے کر آتی۔ ان باتوں کے دوران میں ہم دونوں نے کافی پی اور ٹیلی ویژن بھی دیکھتے رہے۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ دیر بعد موتی محل سے اونچے شعلے اٹھنے شروع ہو جائیں گے اور وہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے بینکاک میں پھیل جائے گی۔ خبر کسی بھی وقت ٹیلی ویژن پر آ سکتی تھی۔ غزالہ نے اس بار بھی میری خیریت سے واپسی کے نفل مانے ہوئے تھے۔ وہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے کرسی کی اوٹ میں نفل پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تو میں بستر پر دراز ہو گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ موتی محل میں آگ لگنے کی خبر سنتے ڈان مجھے فون کرے گا۔ اس کی طرف سے کوئی رابطہ ہونے سے پہلے میرے پاس کوئی مربوط کہانی ہونی ضروری تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میں ایک بڑا مارکا سر کر کے آیا تھا۔ میرے لوٹ آنے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا کہیں سے اس کی خبر نہ آنے پر مجھے رہ رہ کر چھنچلاہٹ ہو رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا تھا کہ شاید میرے آنے کے بعد آگ پھیلنے کی رفتار دھیمی ہو گئی ہو۔ اگر وہاں لگی ہوئی آگ باہر والوں کی نظروں میں نہ آتی تو راجن کے باقی ماندہ 2 وفاداروں کی واپسی کے بعد وہاں یقیناً ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ راجن کی زندگی کے آخری اندازے کے مطابق وہ صورت عادی راز سے پہلے رونما ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ غزالہ نے منت کے نفل پورے کرنے کے بعد شاید عشاء کی نماز بھی ختم کر لی۔ اس نے کھانا منگوایا اور کھانا کھایا گیا۔ ہر طرف سکوت طاری تھا۔ ٹیلی ویژن پر معمول کے مطابق رقص و موسیقی کے تفریحی پروگرام چل رہے تھے۔ 10 بجے میرے موبائل فون کی گھنٹی بجی اور میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ وہ چاؤفان کی کال تھی۔ وہ ہیجان زدہ آواز میں کہہ رہا تھا، ماسٹر موتی محل میں زبردست آگ لگی ہوئی ہے۔ پوری عمارت دھڑا دھڑ چل رہی ہے۔ پورے شہر کی گاڑیاں وہاں آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں مگر اب تک ناکام ہے۔ چاؤفان کی زبان سے وہ تفصیل سن کر میری بے چینی کو قرار آ گیا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، مجھے اندازہ تھا کہ وہ آگ تیزی سے پھیلے گی۔ ہائیں، اس کی تحیر زدہ آوازیں، ماسٹر تو کیا یہ کام تمہارا ہے؟ چاؤفان احتیاط سے کام لو۔ میرا لہجہ سرد ہو گیا۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ شعلے شہر میں دور دور تک نظر آ رہے ہیں۔ آگ دیکھ کر میں ادھر آیا تھا۔ یہاں ہزاروں کی بھیڑ جمع ہے۔ میں ایک بند دکان کے سائبان کے نیچے کھڑا ہوا ہوں۔ ڈان کو اس واقعے کا علم ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ شہر سے دور ہے۔ میں اسی کو فون کرنے کے ارادے سے ادھر سناٹے میں آیا تھا۔ سوچا کہ پہلے تم سے بات کر لوں۔ یہ کب اور کیسے ہوا؟ چند گھنٹے پہلے تو تم میرے ساتھ تھے۔ وہ جوش اور سنسنی کے عالم میں اپنے معمول سے زیادہ تیزی سے بول رہا تھا۔ تم لی کو فتح کر رہے تھے۔ میں اس کام کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ تم سے اپنی جان چھڑا کر میں اسی طرف کیا تھا۔ یہ سب باتیں بعد میں ہوں گی، میں نے کہا۔ سنا ہے کہ آج ڈان نے سیلرز بار میں آنے والوں کو مفت شراب پلائی ہے؟ وہ نہیں معلوم، اس نے جواب دیا۔ میں مادام کے گھر سے تمہاری طرف آیا پھر اپنے گھر چلا گیا۔ تم نے ظلم کیا کہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لیا۔ تمہیں سیلرز بار کی خبر کس نے دی ہے؟ راجن کہہ رہا تھا۔
मैंने उसकी कैफियत के तसव्वुर से माजूज होते हुए कहा, वो कहाँ मिला तुम्हें? चाउफान की आवाज़ बुखलाई हुई थी। मैं मोती महल में उसी से मिलने गया था। मेरे जहन में डान के लिए एक अछूती कहानी का नक्शा उभरना शुरू हो गया और मैंने उसकी दाग बेल डाल दी। वो काला शैतान कहीं नजर नहीं आया? तुमने उसे कहाँ छोड़ा था? बस अब फोन बंद कर दो, बैंकॉक के सारे फोन नाकारा हैं, इन पर से मेरा भरोसा उठ चुका है। मैंने अपने ऑपरेटर्स का बटन दबाकर सिलसिला मौकूफ कर दिया। गजाला मेरे करीब खड़ी हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। वो बोली, बात करते करते आपने अचानक लाइन क्यों काट दी? क्या हो गया फोन को? ये सारा फतूर फोन का है, बस देखती जाओ कि अब क्या होता है। मैंने मुस्कुराते हुए उसे आंख मारी। जहन में एक दरीचा खुलते ही मेरा मूड खुशगवार हो चुका था। मैं वही पूछ रही थी, फोन अच्छा खासा था, इसमें अचानक क्या मसला पैदा हो गया? वो मेरा इशारा नहीं समझ सकी। राजन और उसके साथियों को मैंने किस तरह मार लिया, यह डान के लिए सबसे बड़ा सवाल होगा। इसके जवाब में मुझे कोई ना कोई मजबूत जवाब पेश करना होगा। पर नाकामयाबी के बावजूद मैं डान की नज़रों में अपना एतमाद खो दूंगा। मैंने उसे बताया, ये बात मुझे भी परेशान कर रही है। उसने एतराफ़ किया, वो आपके दोहरे किरदार से नावाकिफ है। उसके जहन में सबसे पहला सवाल यह आएगा कि आपको मोती महल में रसाई कैसे हासिल होगी। सुबह के खून रेज हमले के बाद राजन इतना खौफजदा होगा कि अपने साय से भी भड़क रहा होगा। उसने एक अजनबी को अंदर कैसे घुसने दिया? ये सब अपनी जगह दुरुस्त है। इन बातों का बैंकॉक के टेलीफोन के निज़ाम की खराबी से क्या ताल्लुक है? क्रॉस टाक, मैंने मानी के लहजे में कहा। राजन से सुनी हुई बातें इस हवाले से बेखौफ व खतर धुराई जा सकती है। इन मालूमात की रोशनी में मैं वहां पहुंच गया। असल मसला फिर भी बरकरार रहेगा। उसने पुरतशवीश नजरों से मेरी तरफ देखते हुए उलझन से कहा, आपको इत्तेफाक से अंदर की बातें मालूम हो गई। वो जानना चाहेगा कि आप अंदर कैसे पहुंचे। आज शाम से डान अपने बार में लोगों को मुफ्त शराब पिला रहा है। मैंने गहरा सांस लेकर कहा। यह खबर राजन तक पहुंच चुकी थी। वो सख्त मुश्तइल था। उसे यकीन हो गया कि मोती महल पर सुबह का हमला डान के आदमियों ने किया था और डान इस कामयाबी की खुशी में लोगों में मुफ्त शराब बांट रहा था। वो फौरी तौर पर सेलर्स बार में कोई बड़ी तखरीबी कार्रवाई करके डान को इस जसारत की सजा देना चाह रहा था। इसके आदमी सेलर्स बार का रुख करते तो पहचान लिए जाते। डान इन्हें अपने इलाके से जिंदा न लौटने देता। उसे किसी नए चेहरे की तलाश थी जो एक तबाहकुन टाइम बम वहां पहुंचा सके। मैं इस काम का उम्मीदवार था। ये आपके मामलात हैं, मैं इनमें अपनी टांग अड़ाना नहीं चाहती। मेरे ज़हन में एक मसला था, वो मैंने बता दिया। इसका हल आप ही को तलाश करना है। मैं फोन की घंटी बजने की वजह से उसकी बात पूरी नहीं हो सकी। मैंने ऑपरेटर्स उठाया तो स्क्रीन पर डान का मोबाइल नंबर आया हुआ था। तुम इस वक्त कहाँ हो? लाइन लेते ही मेरे कान में डान की भारी और मखमूर मगर तहक्कुम आमेज आवाज गूंजी। इसका सवाल बहुत सीधा सा था, लेकिन इसके लबो लहजे में ऐसी कोई गैर मामूली बात थी कि अचानक मेरा माथा ठिनक गया। मैंने अपने कारनामे पर किसी फख्र या गर्मजोशी का मुजाहिरा किए बगैर सपाट लहजे में कहा, क्या तुम्हें मोती महल की खबर मिल गई है? हाँ। डान की आवाज़ में जोश व खरोश का कोई अंसर नहीं था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे अभी चाउफान ने बताया है। मैंने सुना है कि वो सुवर का बच्चा तुमसे मेरी शिकायत कर रहा था कि मैं अपने बार में मुफ्त शराब बांट रहा हूँ। इसकी आवाज़ तायद तलब थी। मैंने जवाब में कहा, वो गलत नहीं कह रहा था। चाउफान को यह बात मैंने ही बताई थी। मुझे अपनी बात आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि डान ने अचानक गजबनाक लहजे में बोलना शुरू कर दिया। इसकी ये मजाल कि अब वो मेरे कामों पर तनकीद करने लगा है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी हड्डियां तक कुचल डालूंगा। अभी तक मैं पर्दे के पीछे रहकर खामोशी से तुम्हारा खेल देख रहा था। अब मैं खुद मैदान में उतर कर देखूंगा कि कौन कितने पानी में है। तुम इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। मैंने चाउफान को दानिस्ता यह नहीं बताया था कि मैं राजन और उसके दो साथियों को मौत के घाट उतार चुका था। डान को उसी ने मालूमात फराहम की थी जो इस बारे में अधूरी थी। इस वक्त डान के बिगड़े हुए मूड के पेश नज़र मैंने कोई वजाहत करने की जरूरत महसूस नहीं की। वो बहुत चालाक आदमी था। जब तक मेरी राजन की कशमकश जारी रही, वो गोशा नशी होकर मेरी भरपूर हौसला अफजाई करता रहा। राजन की शिकस्त के वाज़े आसार नजर आते ही उसने खुद मैदान में उतरने का इंडिया देकर यह साबित कर दिया कि हर बड़े बदमाश की तरह वो भी बहुत छोटे दिल का आदमी था और आखिरी कामयाबी का सेहरा अपने सर सजाने का ख्वाहिशमंद था। मैं अभी हाजिर होता हूँ। मैंने उसके आज़ाइम पर कोई तबसरा किए बगैर नहायत सादतमंदी से जवाब दिया। वो तुमसे कहाँ और कैसे मिल गया? इश्तियाल के बावजूद डान अपने फितरी तजस्सुर पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो सका और मेरा जवाब सुनकर बेसाख्ता सवाल कर बैठा। किसके बारे में पूछ रहे हो? मैंने अनजान बनकर पूछा। अली, क्या तुम होश में हो? मैं उसी जहानवी राजन की बात कर रहा था। वो गुराया। ओह, वो लंबी कहानी है। मैं उसे मोती महल में मिला था। मैंने गहरा सांस लेकर बेपरवाही से कहा, मैं वही सुनना चाहता हूँ। चाउफान अपनी गाड़ी लिए तुम्हारे होटल के बाहर मौजूद है। उसके साथ फौरन यहाँ पहुँचो। डान ने अपनी आखिरी हदायत देकर फोन बंद कर दिया। क्या कह रहा था? गजाला ने बेताबाना लहजे में सवाल किया। पीछो ताप खा रहा है। राजन की हड्डियों का सुरमा बनाकर अपनी आंखों में लगाएगा।
मैंने दाहिनी आंख दबा कर तमस्कुर से जवाब दिया। आपको उसको बता देना चाहिए था कि आप उसे मार चुके हैं, खजाला ने संजीदगी से कहा। बाद में उसे पता चलेगा कि वो मरे हुए दुश्मन के बारे में मंसूबाबंदियां करता रहा है तो झुंझलाकर आप पर बरस पड़ेगा। तुम इसकी परवाह न करो। डॉन की नकेल अब मेरे हाथ में है। उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया कि मैं उसे पूरी रोदात सुना था। मैंने हंसते हुए कहा, वैसे भी अभी मेरी कहानी मुकम्मल नहीं है, इसमें कई झोल हैं जिन पर मैं गौर कर रहा हूँ। डॉन के सामने जुबान खोलने से पहले मेरे पास इसके हर सवाल का बरजस्ता जवाब मौजूद होना चाहिए। होटल के बाहर चाउफान और सेलर्स बार में डॉन मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने गजाला से बातें करते हुए जूते पहने, आईने के सामने जाकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और कमरे से चल दिया। मैं होटल से बाहर निकला तो चाउफान अपनी स्याह अकार्ड के दरवाजे से टेक लगाए बेताबी से सिगरेट फूंक रहा था। इसकी गाड़ी हर तरफ से बेदाग नजर आ रही थी। फोमफाट के तहक्कुम में गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसान की महारत से मुरम्मत की गई थी। मुझे देखते ही उसने अधजली सिगरेट सड़क पर फेंक कर जूते से मसल थी और लपक कर मेरे करीब आ गया। मास्टर, फोन के बारे में तुम क्या कह रहे थे? मेरे करीब आते ही उसने पुरतशवीश अंदाज में सरगोशियाना लहजे में पूछा, क्या होटल की ऑपरेटर तुम्हारी बातें सुनने की कोशिश करती है? कहो तो मैं साली को उठवा कर इसका वो हश्र करूंगा कि वो कई हफ्तों तक अपने कदमों पर चलने के काबिल न हो सकेगी। इन घटिया हरकतों की कोई जरूरत नहीं, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर उसे घूरते हुए कहा। हो सके तो टेलीफोन के महकमे के सरबराह को उठवा लो, वो मर्द और सन रसीदा होगा। इसके साथ तुम्हारी बदसलूकी पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है। उसने मेरे शाना बिशाना गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए इसरार किया। बस फोन को बुरा भला कहे जा रहे हो। मैं दरवाजा खोलकर उसकी गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसने फुर्ती से दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट संभाली। मास्टर, मैंने तुमसे कुछ पूछा था। मेरी तवील होती हुई खामोशी से मुस्तरिब होकर उसने मुझे टोका। ये सब बातें तुम्हारी समझ से बाला हैं, मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। तुम ली और दूसरी हसीनाओं के तसव्वुर में डूबे रहो, इससे तुम्हें खासा हफाका होता है। हाय, तुमने फिर उसका नाम ले लिया। वो एक गहरा सांस लेकर बोला, मास्टर तुम यकीन करो कि वो बहुत अनोखी औरत है। मादाम के दीवाने बिला वजह उसके दर के चक्कर नहीं लगाते। वो पूरी जादूगर है। मर्द को ऐसा मशहूर करती है कि वो अनजानी दुनियाओं में। चाउफान प्लीज शट अप, मैंने सख्ती से कहा। मुझे सराफा के कसीदों से कोई दिलचस्पी नहीं है, कहानियां डॉन को सुना देना। वो पहले ही उसे लंबी घोड़ी का नाम दे चुका है। मैं लंबा नहीं हूं, लेकिन वो जादूगरनी एक छोटे घोड़े पर भी मेहरबान हो चुकी है। वो तुम्हारी मद्दाह है। पता नहीं तुम उसके नाम से क्यों चिढ़ने लगे हो। मैं जब उससे मिलता हूँ वो ज्यादा देर तक तुम्हारी बातें करती रहती है। उसकी चमकती हुई आंखों से जाहिर होता है कि तुम्हारे और उसके दरमियान कोई करीबी ताल्लुक कायम हो चुका है जिस पर उसे नाज है। अरे ये क्या, तुम तो सो रहे हो? मुझ पर नजर डालते ही वो बुरी तरह चौंका था। मैं उसका कहा हुआ एक एक लफ्ज सुन रहा था, मगर उसे उसकी गुफ्तगू की फजूलियत का एहसास दिलाने के लिए मैंने जानिस्ता अपनी आंखें मूंद ली थी। मैंने उसके तखातुब का भी कोई जवाब नहीं दिया। मास्टर मुझे परेशान मत करो। कुछ देर के सकूत के बाद उसकी खुशामदाना आवाज उभरी, अब मैं मादाम की कोई बात नहीं करूंगा, मुझे फोन के बारे में कुछ बता दो। मैं थक गया हूँ, मैंने अपनी आंखें खोले बगैर उससे कहा। जब डॉन से मुलाकात होगी तो तुम सब कुछ सुन लेना। चाउफान बस यार गोर मुंह फट जरूर था, लेकिन अपने दिल की गहराई से मेरा एहतराम किया करता था। मेरी गनूदगी का एहसास करते ही उसने सख्ती से खामोशी इख्तियार करके अपनी सारी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज कर दी। मेरी गनूदगी अदाकारी के सिवा कुछ भी नहीं थी। इस वक्त मेरी सारी हिस्से पूरी तरह बेदार थीं और मैं अपने जहन में नई कहानी के ताने बाने बुनने में लगा हुआ था। मैंने राजन से जारी जंग में फतेह हासिल कर ली थी, लेकिन वो किस्सा वहां खत्म नहीं हुआ था। जब तक मैं अपनी असलियत का राज छुपाकर डॉन को मुतमईन न करता, मेरा बैंकॉक से निकलना मुहाल था। माजी में डॉन मेरी हर कामयाबी पर पूरे जोशो खरोश से मुझे मुबारकबाद देता रहा था। वह हर बार मेरी तारीफों के पुल बांध दिया करता, लेकिन मौती महल में आते जनी की वारदात के बाद उसने फोन पर इंतहाई सर्द बल्कि मनफी रवैया इख्तियार करके मुझे बदतरीन ज़हनी परेशानी में मुब्तला कर दिया। उसकी खुश्क और मुख्तसर गुफ्तगू से कुछ ऐसा जाहिर हुआ जैसे मेरी तरफ से उसके जहन में शकूक व शुबहात जन्म ले चुकी हूँ। इन्हें दूर करने के लिए ये ज़रूरी था कि मेरे पास डॉन के हर काट तार सवाल का ऐसा मुस्बत जवाब मौजूद हो जो उसे मुतमईन कर सके। इस वक्त तक मैंने डॉन या चाउफान को ये नहीं बताया था कि मोती महल में आग लगाए जाने से पहले राजन और उसके दो साथी जहन्नुम वासिल हो चुके थे। वो मेरे लिए त्रुप का पत्ता था। मेरा अंदाजा था कि अगर किसी वजह से डॉन मेरे जवाबात से मुतमईन न हो पाता तो राजन की मौत की खबर सुनकर वो यकीनन सब कुछ फरामोश कर देता। मोती महल पर अपने आदमियों के कामयाब हमले की खुशी में हर हरे गहरे को शराब पिलाने वाले शख्स के लिए अपने सबसे बड़े हरीफ की मौत की खबर बहुत अहम होनी चाहिए थी। इस आखिरी वाक़े से पहले डॉन मेरी वफादारी, दलेरी और कारकर्दगी से बहुत मुतासर था। इस खुशी में उसने एक मरहले पर हमारे पासपोर्ट भी लौटाने चाहे,
लेकिन मैंने अपने चंद खदशों के बिना पर वो सफरी दस्तावेजात उसी की तहवील में रहने थी। वो फैसला मैंने अपनी मर्जी से किया, मगर मैं अच्छी तरह जानता था कि मैं डॉन की मर्जी के बगैर उससे अपने पासपोर्ट हासिल नहीं कर सकूंगा। जाफान के साथ काफ़ी वक्त गुजार कर मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो किस कुमाश के लोग थे। दोस्ती में उन्होंने मुझे अपने सर पर बिठाया हुआ था, तो दुश्मनी में वो मेरे खिलाफ हर घटिया और नाकाबिल तसव्वुर हथकंडा इस्तेमाल कर सकते थे। रास्ते में ट्रैफिक के इशारों के मुताबिक गाड़ी रुकती और चलती रही। जब आखिरी बार गाड़ी रुकने के बाद इंजन बंद हुआ तो मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। ओह मास्टर, जरा देखो कि पीने वालों ने यहाँ क्या हाल किया है। इंजन बंद करते ही जाफान ने तहायुर ज़दा लहजे में कहा, मालूम होता है कि ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाने पर आज सेलर्स बार वक्त से पहले बंद कर दिया गया। मैं इसके कहने से पहले देख रहा था कि सेलर्स बार के सामने काफ़ी दूर तक शराब की भांत भांत की खाली बोतलें, बियर के खाली डिब्बे और टूटे हुए गिलास वगैरह बिखरे हुए थे। सेलर्स बार के दरवाजे और तमाम रोशनियां बंद थी। बार के बाहर फैली हुई अबतरी से अंदाज़ा हो रहा था कि बार बंद होने से पहले वहां जमा होने वाले मुफ्त खोर शराबियों ने दिल खोलकर हड़बूंग और लूट मार मचाई थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे इस शाम बार में कुछ भी बाकी न रहा हो। शराब के साथ सेलर्स बार की नफीस और बेश कीमत कराकरी भी बाहर लाकर चिकनाचूर कर दी गई थी। इस इलाके में डॉन का बहुत रौब और दबदबा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसकी मौजूदगी में नशे में धुत शराबी भी ऊंची आवाज में हंसने बोलने से परहेज करते थे। मुझे अंदाजा हो रहा था कि सेलर्स बार से शराब के मुफ्त तकसीम के ऐलान के साथ डॉन का सारा रौब दबदबा आर्जी तौर पर रुखसत हो गया। वह आने वालों पर सख्ती करता तो शायद वहां ऐसी तबाही न फैलती। वो अपने फतेह के नशे में सरशार था। इसी सरमस्ती के आलम में उसने गैर मामूली ढील से काम लिया और वहां आने वालों को अपने दिल की सारी भड़ास निकालने का मौका मिल गया। शायद आज सेलर्स बार को बाकायदा लूट कर ताराज किया गया है। मैंने विंड शील्ड से सामने नजर आने वाले मनाजर का जायजा लेते हुए कहा, अब ऐसा सन्नाटा है जैसे बदमस्त बलवाई हर एक को अपने साथ उठा कर ले गए हों। हैरत है कि डॉन ने पुलिस तलब नहीं की। जाफान ने बेसाख्ता दहाने से आवाज निकाली, मास्टर आवाज नीचे ही रखो। पुलिस से मदद लेना डॉन के लिए गाली से कम न होता, और इस इलाके में कोई पुलिस वाला डॉन की इजाजत बगैर नहीं भटक सकता। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद उसने अपनी बात जारी रखी, मैंने तुम्हारी कही हुई बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। यहाँ आकर अंदाजा हुआ कि छोटा राजन ने तुमसे ठीक ही कहा था। हाईडान ने पूरा बार लुटा दिया है। मुफ्त मिल रही हो तो लोग नालियों में से भी पीने लगते हैं। मैंने इस्तिज़ाई अंदाज में कहा, आज इस इलाके के लोगों के लिए क्रिसमस हो गया। मुझे ताज्जुब है कि यहाँ दूर तक कोई बहका हुआ शराबी नजर नहीं आ रहा। ये इस इलाके में डॉन का नाफिज किया हुआ डिसिप्लिन है। उसने गाड़ी से उतरते हुए जवाब दिया, शराब पीकर सरेआम गुल गुपाड़ा मचाने वालों को वो बहुत कड़ी और अनोखी सजाएं देता है। मुफ्त की पीने वाले बदमस्त होने से पहले अपनी बीवियों या महबूबाओं की तरफ निकल लिए होंगे। इनकी यहाँ गुंजाइश नहीं थी। कुछ लोग इन दोनों नेमतों से महरूम होते हैं। मैंने उसे याद दिलाया, इन्हें जहन्नुम में डालो। उसने अपनी तरंग में हंस कर कहा, महबूबा नेमत होती है, बीवी किसी आजाब से कम नहीं होती। अक्सर शादीशुदा लोग अपनी बीवियों और इनकी बद दिमागियों को भुलाने के लिए शराब पीते हैं। जिनकी बीवी ना हो उनको शराब नोशी की क्या जरूरत है। उसने मेरे साथ चलते हुए फातियाना नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे उसने मुझे सदी का बेहतरीन लतीफ़ा सुनाया हो। बैंकाक के हर मर्द को अपने जैसा बदनसीब मत समझो, मैंने कदर दुष्टि से कहा। आजकल मैं भी यहीं रह रहा हूँ, शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी को एक लम्हे के लिए भी नहीं भुलाना चाहता। मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मास्टर, तुम्हारी बात अपने ऊपर ले जाते हो, फुकराने वाले अंदाज में बोला। तुम आम आदमी नहीं हो, या शायद आदमी से बड़ी कोई शय हो। मैं तो अपने जैसे आम और मजलूम आदमियों की बात कर रहा था, जिनकी बीवियां इनके लिए डरावना ख्वाब बनी रहती हैं। मैंने मजीद उसके मुंह लगना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी इख्तियार कर ली। हम दोनों अकबी गली तय करके सेलर्स बार के पिछले से दरवाजे पर पहुंचे। डोरबेल के जवाब में दरवाजा खोला गया तो इसके अक्ब में मुझे एक शनासा निस्वानी चेहरा नजर आया। लड़की ने हमें पहचान कर अंदर आने के लिए राह देते हुए जो भी जीनों की तरफ इशारा किया। मैंने जीनों की तरफ जाते हुए तंग सी राहदारी के दूसरे सिरे की तरफ देखा। इस वक्त रात के 9 भी नहीं बजे थे, लेकिन बार में गहरे अंधेरे का राज था। शायद इसकी सफाई सुथराई और तजाइन नो का काम अगले दिन पर छोड़ दिया गया था। जाफान मेरे पीछे था। उसने लड़की के करीब से गुजरते हुए इस्तिफामिया लहजे में अपनी जुबान में कुछ कहा। लड़की की आवाज़ मेरे कानों तक नहीं आई। शायद उसने जाफान के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। वो इन लोगों में से था जो अपनी बीवियों से बेजार रहते हैं, लेकिन हर पराई औरत पर बुरी नज़र डालना अपना हक समझते हैं और इस जैल में बिला जरूरत बात करने के बहाने तलाश करते रहते हैं। कोई मनपसंद जवाब मिल जाए तो निहाल हो जाते हैं। फरीके सानी के तेवर खराब हो जाएं तो सुबकी के किसी एहसास के बगैर आगे बढ़ जाते हैं। मैं इसे ये तवक्का नहीं कर सकता था कि वो डॉन की किसी मुलाजमा से कोई बेहुदा बात कहेगा। वो बात बराए बात का कायल था। इसमें किसी मकसद की यावरी का होना जरूरी नहीं था।
شاید اس کی تسکین کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کی بات خاموشی سے سن لی گئی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی میری طبیعت پر عجیب سا خلجان طاری ہونے لگا۔ اس عمارت میں ڈان کی موجودگی میں ہمیشہ خاموشی چھائی رہتی تھی، مگر اس وقت مجھے وہ خاموشی گھمبیر سے محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ میں موتی محل جیسی محفوظ اور ناقابل شکست عمارت میں آگ لگا کر آیا تھا۔